सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामायुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आदि न करणी नहीं, बाह ग्रहे की लाज। बाह ग्रहे की लाज। आओ जीवाला मारे केरे, आओ जीवाला। एक लड़ी परदेस मां, मुने मुकीने का चाल्या जीवाला। मुने होती नींद लड़ी, तमे सूती मूकी काराते। जागीने जोता पियुजी न पासे, पछी तो थासे बरबाते। खल कलीने कहूँ छूँ तमने, आवजो पिया आने केणे। मारा मनना मनोरथ पुरजो, श्रीन्द्रावती लागे चरणे। आओ जीवाला मारे घेरे, आओ जीवा। जी પ્રસ્તુત ભજનમાં સમગ્ર ક્ષર અક્ષર અને અક્ષરાતીતના ધામોની સમજ આપવામાં આવી છે. આ ભજનના રચિતા નવરંગ કહે છે કે આ જગતના સંસારી જનોને ત્રિગુણ કે ત્રિલોકની કંઈ જ સુધ નથી. વાસ્તવમાં પૃથ્વી અર્થાત મૃત્યુલોકની નીચે 7 પાતાલ, પાતાલલોક, રસાતલ, મહાતાલ, તલાતલ, સુતલ, વિતલ, અતલ અને ઉપર ભુવરલોક, સ્વર્ગલોક, મહરલોક, જનલોક તથા તપલોક, આમ 5 લોક છે. તેની ઉપર વૈકુંઠ, જ્યાં વિષ્ણુનો વાસ છે, જે નારાયણ કહેવાય છે. આમ કુલ 14 લોકનું આ અક્ષર બ્રહ્માંડ આદિ નારાયણ અથવા મહાવિષ્ણુ છે, જેમના એકો અહમ બહુશ્યામ, હું એકમાંથી અનેક થાવ એવા સંકલ્પથી સમગ્ર જીવોની ઉત્પત્તિ થાય છે. આ 14 લોકના બ્રહ્માંડને વીંટાઈને 7 શૂન્ય તથા અષ્ટાવરણ કે જેમાં પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ અને અહંકારનો સમાવેશ થાય છે. આ સમગ્ર રચનાને ક્ષર પુરુષ, નિરાકાર, કાલમાયાનું બ્રહ્માંડ એવા વિવિધ નામોથી ઓળખવામાં આવે છે, જ્યાં કાળ સૌનું ભક્ષણ કરે છે, અર્થાત જે જન્મે છે તે મૃત્યુ પામે છે. તેની ઉપર યોગ માયા છે, જે અક્ષર બ્રહ્મની પરાશક્તિયુક્ત, અખંડ, અવિનાશી, સ્વયં પ્રકાશિત, ચેતન અને ત્રિગુણાતીત છે, જ્યાં ગોલોક છે.
વલ્લભાચાર્યજી ત્યાં સુધી પહોંચ્યા છે. ત્યાં બ્રજ અને રાસ અખંડ છે. આ સત્પુરુષ અક્ષર બ્રહ્મનો વિસ્તાર છે, જેનું કબીરજી ધ્યાન ધરતા હતા. પરંતુ તેથી પરે મારા અક્ષરાતીત ધણી છે, જેમની સાથે મારું સાચું સગપણ છે, જ્યાં નિત્ય નૂતન લીલા થાય છે, જ્યાં માત્ર પ્રેમથી જ પહોંચાય છે, એવા પૂર્ણાનંદ પૂર્ણ બ્રહ્મ મારા બરથા છે. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય. સજની સુનો અનુપમ વાત કહું એક નાદની રે લોલ. વાલી મારી પૂર્ણ પદની વાત કહી મુને પારની રે લોલ. સજની સુનો અનુપમ વાત કહું એક નાદની રે લોલ. ત્રિગુણ ત્રિલોકમાં તેહ કે શુદ્ધ નહીં સંસાર મારે લોલ. વૈકુંઠ વિષ્ણુની ઉપર કે ત્યાંના તાય વસે રે લોલ. સજની સુણો અનુપમ વાત કહું એક નાદની રે લોલ. તેનો આદિ નારાયણ નામ રે મહા વિષ્ણુ કહે રે લોલ. તેના ઉપર છે 709 કોટી શક્તિ વસે રે લોલ. સજની સુણો અનુપમ વાત કહું એક નાદની રે લોલ. તે સહુ નિરાકાર નામ કે ભક્ષણ સૌનું કરે રે લોલ. એ સહુ છળતણો વિસ્તાર કે મહા હિંડમાં રહે રે લોલ. સજની સુણો અનુપમ વાત કહું એક નાદની રે લોલ. તેની ઉપર છે ગોલોક વલ્લભાચાર્યજી પહોંચ્યા રે લોલ. ત્યાં છે રાસ અખંડ પાર વૃંદાવન તાર છે રે લોલ. સજની સુણો અનુપમ વાત કહું એક નાદની રે લોલ. ત્યાં તો રાધા કૃષ્ણનો ખેલ કે લીલા નિત નવી કરે રે લોલ. તેથી સત્ય પુરુષ છે પાર કે કબીર જેનું ધ્યાન ધરે રે લોલ. સજણી સુણો અનુપમ વાત કહું એક નાદની રે લોલ. તેથી અક્ષર અળગો જાણો કે વેદમાં વાણી વધે રે લોલ. તેનું રૂપ અગોચર જાણો કવિ તેમાં શું કહે રે લોલ. સજની સુણો અનુપમ વાત કહું એક નાદની રે લોલ. અક્ષરાતીત ધરણી શ્રીધામ લીલા નિત્ય નવી કરે રે લોલ. તેથી સગ પણ મારું સત્ય પ્રેમી પિયો પામ્યા રે લોલ.
सजनी सुनो अनुपम बात, कहूँ एक नादनी रे लो। सखी पूर्णानंद बरधार की रस पूर्ण जरी रे लो। हे गुण गाय श्री इंद्रावती नार के नवरंग हृदय धरे रे लोन। सजनी सुनो अनुपम बात, कहूँ एक नादनी रे लोन। वाले मारे पूर्ण पदनी बात, कहीं मुने पारनी रे लोन। सजनी सुनो अनुपम बात, कहूँ एक नादनी रे लोन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंदे नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेरा सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बोलो श्री निजानंद स्वामी की। और जिसके साथ हमारी वननेस है, हम इधर आके भूल गए, लेकिन क्या वो हमसे जुदा हो सकता है? ये कारण है कि जब आत्माएं यहाँ आई, भले हम जिस तन को लेके भूल गए कि हमें उसकी पहचान देने वाला कोई भी यहाँ है ही नहीं। श्री प्राणनाथ जी की वाणी आने से पहले तक कोई भी, सब कहते हैं परमात्मा है, कोई नहीं कहता परमात्मा दो हैं। ध्यान के साथ सुंदर सा जी जरा डीपली सोचिए। सब धर्म कहते हैं ना कि परमात्मा एक है, परमात्मा एक है, परमात्मा एक है। यदि उस एक की पहचान हो जाती तो आज कभी भी इतने परमात्मा ना होते और ना ही इतने धर्म होते। जब सबको एक की पहचान हो जाएगी तो फिर धर्म कितने हो जाएंगे कहने की जरूरत नहीं। ये है जो स्वामी श्री प्राणनाथ जी लेकर के आए। पर पहले सुख संयम को और पीछे सुख संसार। कल वो दृष्टांत नहीं दिया था बरात वाला कि मीनू तो वही है, मीनू तो 600 का ही है, लेकिन मेंबर ऑफ बरात जो हैं वो 200 हैं। तो सबसे पहले किन के वास्ते? भाई बरातियों के लिए, जिनके कारण से ये सब कुछ स्वामी जी लेकर के आए हैं। और सिर्फ यही बात सतगुरुदेव चंद जी श्यामा रानी जी ने पूछी थी कि हे राज जी महाराज, आज दिन तक ये ज्ञान जो आपका है ये तो संसार में कहीं है नहीं, तो कौन विश्वास करेगा? Who will believe? कहने का डोंट वरी, सब विद वतन से कि मैं आया हूं ना, तो सारी विद कि कैसे दुनिया वालों को ज्ञान से, और तुम्हें ज्ञान से नहीं, तुम्हें परम धाम के संबंध से बताऊंगा कि तुम मेरे क्या हो और मैं तुम्हारा क्या हूं। अब वो बता रहे हैं, प्रभु नहीं, ध्यान के साथ, वर्ड ऑफ डिफरेंसेस देयर, प्रभु एंड धनी। तो स्वामी जी ने यही प्रश्न हरिद्वार के अंदर, स्वामी जी भाई प्लीज जरा ये गटपट मत करिए, ये नहीं चलेगा, थोड़ा डिस्टर्बेंस मत रखिए। हाँ इधर ध्यान दो। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज 1735 में जब हरिद्वार में कुंभ का मेला था वहां पर जाते हैं, तो वहां उन्होंने अपने जीव के मुक्ति के वास्ते सब पर प्रश्न किए। और ये विषय तो बहुत बड़ा है, पर संक्षिप्त में उसका वर्णन बताता हूँ।
तब उन्होंने सबने वैकुंठ तक का ज्ञान दिया। अब स्वामी जी उन्हीं के ग्रंथों से कहते भी जब महाप्रलय एक दिन तो होना है, फिर हमारे जीव को जो है मुक्ति कहाँ मिलेगी, तो आगे का ज्ञान किसी के पास था नहीं। तब फिर स्वामी जी कहते हैं कि अब है मेरे सब साथियों को बोलते हैं, जितने भी लोग वहां थे, कि ऐ आचार्यों, ऐ संत जनों, ऐ सुनने वालों, सुनो सुनो रे सत्यवादियों, कहूं सो सतगुरु मुखबान, धनी मेरा प्रभु विश्व का, धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रगट्या प्रमाण, कि मेरा जो पति है, मेरा जो हस्बैंड है, वो ही सारी दुनिया का प्रभु महाप्रभु है, मेरा प्रभु नहीं। समझे? प्रभु कहेंगे तो वननेस आएगी कि द्वैत आ जाएगा, सेपरेशन आ जाएगा। दुनिया का वो प्रभु है, पालन पोषण उसके हुक्म से होता है, सब कुछ उसी के ही हुक्म से हो रहा है, और सारे ग्रंथ कहते हैं कि भी उसके हुक्म से ही सब कुछ हो रहा है। अब यदि उससे पूछा जाए भी उसका हुक्म तो है, हुक्म तो मानते हैं, हुक्म करने वाले के स्वरूप का पता, पूछो भी हुक्म करता कौन है? क्वेश्चन इज दिस। ये है पारब्रह्म की वाणी। सारे इस चीज को मानते हैं कि भाई द ऑर्डर सुप्रीम गॉड, दिस इज डूइंग एवरीथिंग, ठीक है, राइट। हुक्म करता कौन है? उसका स्वरूप क्या है? भाई हुक्म जो करता है उसका कोई स्वरूप तो होगा। हुक्म दीवार तो करती नहीं, हुक्म कोई अंधेरा तो करता नहीं। हुक्म करने वाले का स्वरूप क्या है, उसका नाम क्या है, और उसकी लीला कहाँ है, और वो रहता कहाँ पर है, उस चीज को हम आत्माएं जो परम धाम की, जिनको हम कहते हैं सुंदर साथ, उनको बता रहे हैं कि अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, और अपना वासा है निज धाम। अपना ठिकाना जो है वो परम धाम है। अब वो क्या है परम धाम, और हमारा ठिकाना जिसको हम परम धाम कहते हैं वो क्या है? अब शास्त्रों से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट, सोई अखंड अक्षरातीत घर, जहां हमारा घर है वो किसका घर है? हमारे धनी का, मेरे हस्बैंड का। तो मेरा हस्बैंड कौन है? अनादि अक्षरातीत है। तो आफ्टर मैरिज, आफ्टर रिलेशन, आफ्टर वननेस होने के बाद जो उसका घर है वो हमारा घर होगा या किसी और का घर होगा? जब पति और पत्नी का संबंध हो जाता है तो फिर उसके बाद पत्नी का घर कौन सा है? जो उसके हस्बैंड का घर है। ये तारतम्य किसके लिए आया है? जो परम धाम की आत्माएं हैं, उनको श्री राज्य महाराज के सामने बैठकर उस संबंध से ही आत्म के द्वारा उस राज्य महाराज को हृदय में धारण करना है। इसको कहते हैं ब्रह्म सृष्टि को तारतम्य का मिलना। और वही जब हम जीव सृष्टि को तारतम्य देंगे या मिलेगा तो उनको मिलेगा तारतम्य नाम और ज्ञान, और कंठी बांधो भाई और उसका भजन करो। हमें उसको हृदय में बिठाकर श्री राज्य महाराज के स्वरूप को, वो मूल मिलावा, मतलब कहा मूल मिलावा किसको कहते हैं? उस अखंड परम धाम के अंदर, अक्षरातीत के घर के अंदर, जहां वो सिंहासन के ऊपर विराजमान हैं और जहां हमारी पर आत्म उनके चरणों में बैठी हुई है, वो अभी बाई मैप्स में आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ कि इस समय हम कहाँ पर हैं और वो अक्षरातीत का ठिकाना कहाँ है और परम धाम कहाँ है। जो कह तो दिया जी हम परम धाम से आए हैं, अक्षरातीत का घर ही, क्योंकि छपाई क्या बता रही है? सोई अखंड अक्षरातीत घर। वो जो अक्षरातीत का घर है वही परम धाम है और वही मूल हमारा ठिकाना है। जो वाणी में स्वामी जी ने कहा, ए मूल मिलावा अपना, नजर दीजिए इत, हर वक्त काम काज करते हुए अपनी सुरता, नजर का मतलब ये नजर नहीं, ये नजर वानी जाएगी, आत्म शक्ति, आत्म दृष्टि, सुरता, आत्म को कहाँ लगाओ?
ये मूल मिलावा अपना। ये जो श्लोक लिखे हुए हैं ये वेदों के हिसाब से जो कहा है कि संसार की जड़ जो है ऊपर है और संसार नीचे है, ये उसका तो 7 श्लोक है गीता के भागवत में। ये वेदों के हिसाब से जो कहा है कि संसार की जड़ जो है ऊपर है और संसार नीचे है, ये उसका तो 7 श्लोक है गीता के भागवत के वेदों के शास्त्रों के। अब ये क्या है? ये है क्षरपक्ष जो स्वयं वैराट का स्वरूप महाभारत के अंदर श्री कृष्ण जी ने दिखाया। ये है आदि नारायण जिसको अपने आदि नारायण स्वामी मानते हैं। ये बैठे, ये इस सारी सृष्टि के मालिक, इस सारे ब्रह्मांड के ये मालिक। और अब ध्यान के साथ ये क्या है? इनका असल ठिकाना कहीं और है। ये इन ड्रीम है, ये सपने के अंदर है। कैसे? जैसे हम घर को रात को घर में पलंग पर लेते हैं तो हमारा ये तन तो पलंग पर होता है, हमें स्वप्न स्टार्ट होता है। तो पहले सपना नहीं आता, पहले हमको नींद आती है। तो नींद में क्या होता है कि इस तन की हमें सुध नहीं रहती और उसके बाद एक सपना स्टार्ट होता है। अब सारा हमारे शरीर का पार्ट उस समय बिल्कुल मन भी, बुद्धि भी और शरीर भी शांत होता है, लेकिन मन जो है मन शांत नहीं होता। सपने के अंदर कौन काम करता रहता है? मन काम करता रहता है। और मन कौन सा काम करता है? अपनी तरफ से नहीं बनाता। जो थिंकिंग, जो वर्क हम जागृत अवस्था में कर नहीं सके, पेंडिंग रह जाता है, तो दिल में चिंता बनी रहती है, यार ये काम कल जरूर करेंगे, सो जाइए। तो हम तो कल करेंगे, लेकिन मन जो है वो रात को उस काम करने के लिए चला जाता है। मानो उसको आपने आज टिकट लिया और फ्लाइट लेनी थी, किसी कारणवश आप रुक गए, लेकिन उसकी चिंता मन में बनी रही। अब रात को क्या होगा? सो जाइए। आपका मन जो है आपका ही नया तन धारण करेगा। सपने के अंदर हमको सपना आता है तो मेरे जैसा ही तो तन हम देखते हैं, कोई सेपरेशन तो नहीं होती है। वो तन जो है वो कहाँ से बना? किसने बनाया? हमारे मन ने बनाया। और फिर वो करता है, हमारे घर में जहाँ हमारी अटैची और बैगेज पड़े थे उसको उठाता है, फ्लाइट पे जाता है। 1 मिनट में फ्लाइट तैयार करता है। अमेरिका वाले बाद में तैयार करेंगे, 1 सेकंड में तैयार कर देता है। यार एवरीथिंग ओके, जाके तो सीट पे बैठता है, फ्लाइट उड़ती है, चला जाता है, काम कर रहा है। इस तरह से अब ध्यान के साथ जरा प्लीज कम टू मी। जब तक हम वो नींद में रहते हैं वो ड्रीम सच्चा लगता है कि झूठा? बिल्कुल सोच करके बताइए। वो ज्ञान क्या कि गुरुजी ज्ञान सुना के चले गए और हम पीछे से पल्ला झाड़ के भूल गए। वो ज्ञान किस काम का? आप समझो, औरों को भी समझाओ। प्राणनाथ जी वो वाणी लेकर के आए। जब तक वो ड्रीम हम देखते रहते हैं तब तक इसकी हमें कोई सुध नहीं होती, अपने घर की कोई खबर नहीं होती और कुछ खबर नहीं होती। खबर किसकी होती है? उस ड्रीम की होती। जो कुछ वहां देख रहे हैं वो हमको सत्य लगता है। यदि उस समय वो शरीर को जो सपने के अंदर है कोई पूछे कि जी आप कहाँ से आए हैं, बता सकेगा? बिल्कुल नहीं बता सकता, क्योंकि उसके चारों तरफ क्या है? नींद। नींद जब हटे, नाउ कम टू द पॉइंट, नींद जब हटे तो असल तो रहेगा नींद वाला। बोलिए 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 बोलिए, खत्म हो जाएगा। एक देख सकते हो, या नींद वाले को देखो या असल को देखो। इस तरह से ये सारा संसार किसी का ड्रीम है और उसके अंदर हम और आप बने हुए हैं। हमको ये बिल्कुल ट्रुथ, बिल्कुल एक्यूरेट लग रहा है। जिस दिन वो जगेगा हमारा और आपका पता ही नहीं रहेगा कि कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है।
इसलिए संसार इस मुझवन के अंदर है कि व्हाट आर दी फैक्ट्स। अब ये है वो असल आदि नारायण। अब शास्त्रों से प्रमाण लीजिए, जब ड्रीम आती है किसको, लव इनस्ट पार्ट, ये है इनका असल ठिकाना। आगे आइए, दूर से देखने से काम नहीं चलेगा। जिनको नहीं नजर आ जाए आगे आ जाइए, शर्म मत करिए। आगे लाओ भाई, हम तो बुलाते हैं बार बार, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। ये आदि नारायण हैं, ये इनका असल ठिकाना, ये अखंड है। इनको हुक्म होता है अक्षर ब्रह्म का, ये अक्षर ब्रह्म है। इनका ये मन का स्वरूप है। मन चित्त बुद्ध अहंकार, 4 पार्ट हैं इसके। मन चित्त बुद्ध अहंकार, ये सत्य है, इनका कभी नाश नहीं होता। इनको हुक्म होता है कि संसार बनाओ। एक शक्ति केवल इसकी ये सारे को बनाती है। एक चेतन शक्ति उस ड्रीम के अंदर यहाँ से जो है इसके अंदर आती है। जो शास्त्रों में क्या लिखा कि 1000 वर्ष तक गर्भोदक समुद्र में अंडा तैरता रहा। वो 1000 साल से गर्भोदक समुद्र का अर्थ क्या है कि जब अपन रात को नींद में जाते हैं तो एडवांस तो नहीं ड्रीम शुरू हो जाता, विद इन 5 मिनट्स 10 मिनट्स 15 मिनट में, आधे घंटे में जब हम साउंड स्लीप में जाते हैं तो तभी तो सपना स्टार्ट होता है ना। उस पीरियड को वेदों में क्या कहा है कि 1000 वर्ष तक अंडा तैरता रहा। अंडा नहीं, नारायण, अर्थात जिसका स्वप्ने में जल में घर है। जल क्या है, एक स्वप्न है, उसमें ये है। अब जब सपना स्टार्ट हुआ तो इन्होंने देखा कि चारों तरफ अंधारा ही अंधारा है। मन में क्या इच्छा हुई, एको अस्मि बहुश्याम, मैं अनेक एक हूँ, एक से क्या हो जाऊं, अनेक हो जाऊं। तो इच्छा हुई। इच्छा क्या है, माया की शक्ति। ये माया का साथ मिलना और यहाँ से यहाँ आगे पाताल में। ये बैठे हैं आदि नारायण जी अपनी इच्छा शक्ति कमला जी के साथ। इनके मिलन से 3 गुणों की, एक कमल का फूल है जिसको नाभि कमल से 3 गुणों की उत्पत्ति कहते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। अब इन्होंने क्या किया कि पूरी शक्ति अपनी इन तीनों को दे दी। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण क्या बन गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। चलो भाई संसार को बनाओ, मिटाओ, सारी शक्ति तुम्हारे पास है, तुम ही संसार के भगवान हो, परमात्मा हो। लेकिन देना कितना, कर्मों के हिसाब से देना, फालतू नहीं देना। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। सारे ग्रंथों के प्रमाण से सुंदर साजी समझिए, ये नहीं कि भाई अपनी तरफ से कोई अटकल ठोका ठाकी कर जाए। गीता देख लो, भागवत देख लो, रामायण देख लो, क्या विधान है, क्या नियम है। अगर किसने नियम गड़बड़ किया पीछे से चिट आ जाती है, कितना फाइन फौरन। यहाँ की पुलिस तो फिर ढूंढने चलती है ना, वहाँ 1 मिनट में कंप्यूटराइज्ड है एवरीथिंग। यहाँ हम छुप के मीट खा लें, छुप के वो करा रहे, कौन देख रहा है। ये पता नहीं कि यहाँ का सेल उधर लगा पड़ा है। ये देखो, ये बैठे हैं सेल वाले। यहाँ की पूरी कंप्यूटराइजेशन यहाँ पर है, बिल्कुल हर एक के अंदर कंप्यूटर फिट है। हम समझ रहे हैं कि हम एलोन होटल में जाके कहीं जो है गड़बड़ सड़बड़ कर लेंगे, करिए। भाई रिलेशन से ही तो चोरी कर सकते हैं। वाइफ से मैं चोरी कर सकता हूँ, हस्बैंड से वाइफ चोरी कर सकती है, नाना ब्रदर जो है मोटा से चोरी कर सकते हैं, लेकिन इससे कौन चोरी करेगा। एक कर्म की जो रील है चलती रहती है। अब ज्યાં સુધી આ કર્મોના બંધન કટે नहीं, ત્યાં સુધી भवसागर से पार कौन जाने देगा। यही भगवान कहते हैं, ये विष्णु भगवान जिन्होंने विराट का स्वरूप दिखाया कि देखो अर्जुन, कर्म के हिसाब से जो कुछ तुम मांग, आई कैन गिव यू। मैं इस सृष्टि का मालिक हूँ। भौतिकवाद का मटेरियलिज्म मेरी पावर में है, जो कुछ कहे दे सकता हूँ।
अर्जुन ने जब वैराट का स्वरूप देखा, कहने लगे वो भगवान, एक बर्थ लेने से इतना दुख कंठ पड़ता है, हमें तो इससे छुड़ा दो कि दोबारा जन्म और मरण ना हो। ये क्या है कि यहाँ यंग एज होती है, कभी इधर दर्द है, कभी इधर दर्द है, कभी ये पीड़ा है, कभी कोई संकट है। ये सारा, ये शरीर भी और सारा ब्रह्मांड दुख ही दुख का घर है, इससे छुड़ाओ। अब ये बोलते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम, ये मैं नहीं कर सकता, मेरी स्टेट ये है, इस स्टेट का मैं गवर्नर हूँ, बोल क्या चाहता है साइन कर, आगे दे नहीं सकता। पावर नहीं है तो बोलो कहाँ से लाए। हम और आप तो एक दूसरे को झूठ बोल सकते हैं, भगवान कभी भी झूठ नहीं, कोई भी शक्ति, गीता में साफ लिखा है। अर्जुन वो पावर में नहीं, उत्तमा पुरुष से कहे अन्य परमात्मा इति उदारेता, जो कुछ तुमने डिमांड की है वो उत्तम पुरुष के बिना और कोई दे नहीं सकता। बाकी इस संसार के अंदर जितने भी भगवान हैं, कभी किसी की निंदा न करना, आखिर वो भी किसी की पावर है। गवर्नर है तो किसी की पावर है, गवर्नर के अंडर जो ऑफिसर हैं वो भी पावर हैं। इसलिए कभी ये तो मुख से सीखना नहीं, तारतम्य लेने से पहले किसी धर्म की निंदा मत करना, किसी ग्रंथ की निंदा नहीं करना, किसी पर गुरु की जो है निंदा नहीं करना। कोई कैसा ज्ञान सुनाता है तो उससे अंडरस्टैंड करो कि इसके हृदय में क्या है। जो आपको फॉल्स की बातें बताएगा, किसी की निंदा करेगा, तो समझ लेना कि इसके पास सत्य का ज्ञान। आप मानो किसी जगह शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो जो उसके पास माल होगा वही तो आपको सप्लाई करेगा। जिसके हृदय में झूठ है, निंदा है, वो जब भी बैठेगा एकांत में बैठेगा और निंदा करेगा। और जिसके पास सत्य का ज्ञान है, आम में सुनो, एकांत में सुनो, कहीं भी सुनो, जिसका मीटर ही ट्रुथ के साथ है, उसमें से कौन सी आवाज आएगी? ट्रुथ ही का ज्ञान सुनाएगा। इसलिए किसी की निंदा नहीं करना, किसी ग्रंथ को खंडित नहीं करना, किसी गुरु की निंदा नहीं करना, किसी भगवान की निंदा नहीं करना। अब आगे बढ़िए, यहाँ क्या है? कर्मों का फल मिलता है, और फिर कर्मों से आओ जाओ, आओ और जाओ। वहां से इससे भी आगे परम धाम है, आपको परम धाम ले चलना है ना। अच्छा भाई, आगे के अक्षरातीत का जो घर है, तारतम लेने से हम कहाँ जाएंगे? जहाँ मेरा हस्बैंड रहता है। भले हम यहाँ है ना, वो यहाँ आया है बारात लेकर के, और हमें अपने साथ ले जाने के वास्ते शरीर रखने। वो कहाँ है? सोई अखंड अक्षरातीत घर। ये नित्य पाठ का गोटा वाणी में से कुलदम श्लोक का एक पाठ है, प्रकाश हिंदुस्तानी में से ये वाणी। अब चलिए आगे। अब ये जो है, ये क्या है? ये अष्ट आवरण पड़े हुए हैं, सूक्ष्म में बताता हूँ, फिर भी तक साथ जिन दिनों चलेंगे हम ज्यादा विस्तार से समझाएंगे। 5 तत्व और 3 गुण जो यहाँ कहे गए नहीं, ये उसका जो है, इसको खींच के खड़े। अब संसार से किसी भी घर में जाके पूछो जी, ये पाताल से लेके इस पृथ्वी पर कितना लोड है, लेकिन फिर भी ये कांपती नहीं है, नीचे ऊपर कहीं नहीं जाती, लेकिन अधर में अंतरिक्ष में लटकी हुई है। तो किसके सहारे? किसी ने बांधा नहीं, किसी ने नीचे से थंबा नहीं दिया, तो ये खड़ी कैसे है? इसकी प्रोटेक्शन कैसे होती है? तो ये देखिए, ये जो 8 आवरण हैं, ये इसको मिकनातीस की तरह से, मैग्नेट की तरह से चारों तरफ से खींच के रखा है। यहाँ अगर में आप 40 kg का ये पीस लोहे का रखिए और चारों तरफ इसके मैग्नेट लगा दीजिए, तो खड़ा रहेगा क्या? नीचे आएगा। अगर नीचे आएगा, ऊपर वाला खींचेगा, उधर जाएगा, वो वाला खींचेगा, बिल्कुल इसका जो है संतुलन एक जैसा रहेगा। ये इसके आधार पर है। अब यहाँ से कोई भी इधर नहीं जा सकता। क्यों? ये इनके बंधन में पड़े हुए हैं। त्रिदेवा भी, ध्यान के साथ मेरे सुंदरता जी, अंदर चले जाओ, पलंग बिछा। अच्छा चलो काम। हाँ जी, ये तीनों की भी, इन शॉर्ट चलते हैं ऊपर, ये तीनों की भी उत्पत्ति यहाँ से हुई, बने हैं ना। इसलिए यहाँ पर विधान क्या है कि जिसकी उत्पत्ति होगी, जिसका जन्म होगा, उसका मरण पॉजिटिवली होना है। चाहे कोई मनुष्य है, चाहे कोई जानवर है, चाहे कोई देवी देव है, चाहे कोई पण शक्ति है, ये यहाँ का विधान है। जब ऊपर से हुक्म होता है मिटा दो, ध्यान दो,
तो ये सारा सिमट करके कहाँ आ जाता है? इन तीनों में, ब्रह्मा विष्णु महेश में, जो इन्होंने इनको बनाया है। और ये तीनों कहाँ चले जाते हैं? आदि नारायण में। इसलिए ये सारी सृष्टि का जो भगवान है, मालिक है, कौन है? आदि नारायण स्वामी। लेकिन ये इसका असल ठिकाना नहीं। जब ये सारा निर्माण खत्म होगा तो इनका भी ये स्वरूप जो है ये खत्म हो जाएगा। इसलिए इसको कहा है क्षर पुरुष। क्षर एटले नाशवान। अब इस एक का ठिकाना है, इसका ठिकाना कोई नहीं है, क्योंकि ये ड्रीम है। ड्रीम जब उधर वो जगेगा तो ये सारा ड्रीम कहाँ जाएगा? एट ए टाइम यू कैन सी वन थिंग, या उसको देखिए और या इसको देखिए। सवाल है, फिर हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि फिर हम कैसे देखेंगे? ड्रीम देखेंगे बॉडी के साथ और उसको देखेंगे आत्मा के साथ। ड्रीम देखने के वास्ते, ब्रह्मांड देखने के लिए यहाँ के रिलेटेड जितनी भी रिलेशनशिप है बॉडी है, और उसके साथ संबंध इसका नहीं है, आत्मा का। उसके साथ संबंध हमारी आत्मा का है। अब चलिए आगे कि ये कहाँ से आता है जो संसार को बनाता और मिटाता है। जब काफी समय होगा ना फिर और विस्तार से, अब तो चौपाई समझने के लिए तो बताना ही पड़ेगा। तो अब आ जाएगा। और ये बाकायदा ये नहीं है कि ये प्रणामी धर्म के ज्ञान से, बाय द एड ऑफ एवरी बुक्स, गीता, भागवत, रामायण, वेदा, शास्त्र, बौद्ध ग्रंथों के प्रमाणों के साथ है। ये कोई मन की लिखी हुई बातें नहीं। इसका एक एक चीज का जो है ये श्लोक 7 ग्रंथों के बराबर लिखे हुए हैं। अब ये देखिए, ये 4 वेद तो आपने सुने ही। अथर्व वेद में लिखा है कि कलयुग के अंदर जब परब्रह्म दुनिया के अंदर आएंगे तो वो 5वां वेद जाहिर होगा, और उस वेद का नाम क्या होगा? स्वसम। जैसे परब्रह्म का स्वरूप धाम होगा, उस ग्रंथ के अंदर उनकी ही परिभाषा और सत्य का ज्ञान होगा, जिसको हम कहते हैं स्वरूप सत्य। उसको जो है शास्त्रों में स्वसम वेद का है। उसकी उत्पत्ति होगी वो अंत समय में। अब आगे चलिए, ये है वो, आइए आगे आइए आइए, जब जगह है तो जब जगह। अब ये है वो अखंड स्थान। उसके बाद क्या है? केवल श्रीमद् भागवत का ज्ञान, जहाँ दूसरे ग्रंथ नहीं पहुंचे, जिसको कहा है नित्य वृंदावन की गौलोक की लीला, ब्रिज और रास। अब यहाँ पर जो है 2 कृष्ण हैं और 2 राधे हैं। उनसे पूछो भागवत से, महाराज कृष्ण तो एक है, ये 2 कहाँ से आए? इसका भेद तारतम्य के बिना कोई बता सकता नहीं। और ये विषय आपको सैटरडे को जब सब सुंदर साथ होंगे तो श्री कृष्ण की त्रिधा लीला क्या है, यहाँ पर 2 अखंड कैसे हुए, लीला कैसे हुई, और हकीकत में श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत जो है वो कौन है। जैसे ये देखिए, ये तो छोटा है ना, अब आ जाइए। ये है ब्रिजाखंड, ये है रास। दोनों में श्री कृष्ण है और दोनों में ही राधिका है। तो श्री कृष्ण एक है कि 2? ये देखो 2 और 2 देखो राधिका। ये पहले नहीं थी। जब श्री राज्य महाराज ब्रिज में नंद जी के घर आए तब श्री कृष्ण नाम हुआ, और उन्होंने जो ब्रिज की लीला की तो वो कर दी अखंड यहाँ। और रास कहाँ अखंड की? 2 तन उन्होंने जो धारण किए, एक बाल मुकुंद 11 साल और 52 दिन वाला, और एक रास में जो किशोर तन बांके हरि का। ये नहीं है उसका अर्थ के भाई त्रिधा लीला का अर्थ जो है वो अंग से 3 जगह से, एक गर्दन से टेढ़ा है या कमर से टेढ़ा है या पग से टेढ़ा है। ये इसकी क्लैरिफिकेशन नहीं। 3 स्वरूप हैं उसके, जुदा जुदा स्वरूप से जुदा जुदा उसने लीला की है। ब्रिज से, ब्रिज के तन में जो लीला की है वो बाल लीला की है, इसलिए उसका नाम भी क्या हुआ? बाल मुकुंद। वो लीला क्या है? और फिर उसके बाद किशोर लीला जो हुई वो क्यों हुई, किसके वास्ते हुई, ये जुदा लीला क्यों हुई, वो क्यों हुई, ये सैटरडे को उस दिन विषय ही रहेगा
श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला, तीन भेद क्या है। अच्छा, ये हो गए तो अब उसके बाद चलिए, ये है वो अक्षर ब्रह्म जिसके हुक्म से मन चित्त बुद्ध ये हुक्म करते हैं और ये लीलाएं करते रहते हैं, फंक्शनिंग होती रहती है। अब इसके बाद क्या है कि ये अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत में क्या फर्क है, ये उसकी पार्लियामेंट्री पावर है जिसको हम कहते हैं सत चिद आनंद। तो दिस इज द पार्ट ऑफ दैट सुप्रीम गॉड ओनली सत। सत इटले पार्लियामेंट्री सत्ता, हुकूमत सत्ता की शक्ति है। और ये क्या है, उसका निवास स्थान राष्ट्रपति भवन, ये है परम धाम। यहाँ हमारे पर आत्म बैठी हुई है, ये इसका भी स्वरूप। कल हमने फिर यहीं पर एकत्रित होने, रात को वो भी जो आज वो मैप भूल गए, वो आपको मूल मिलावा बताएंगे जहाँ बैठकर हमारी पर आत्म में हमारा सत्य स्वरूप वहाँ है। और ये क्या है, ये ड्रीम वाला है, इससे हम इस ड्रीम को देख रहे हैं। और असल ठिकाना कहाँ है, जब वहाँ उठेंगे याद रहेगी आज क्या सपना देखा था, पर ये नहीं रहेगा। आज हम उस ज्ञान से उसको विचार सकते हैं, हृदय में ला सकते हैं। अब जब तक, अब तारतम क्या करेगा, मंथन नहीं, तारतम से उस श्री राज्य के स्वरूप को अपने हृदय में धारण करना, फिर इससे काम करिए। ये नहीं है कभी तारतम धारण करने के बाद कोई विशेष एक्शन करना पड़ता है या कोई ऐसी चीज नथिंग, बल्कि क्या होगा कि इसके जो विधान थे कि कर्म करना है, पहला नक्शा दिखाया ना कर्म वाला आपको। अरे यार तुम तो गड़बड़ कर दी, क्यों उठा के ले गए इतनी जल्दी। यहाँ पर क्या ला है कि डू कर्मस, ठीक है। अब जब डायरेक्ट राष्ट्रपति के साथ संबंध हो जाएगा, कर्म छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे, बढ़िया, क्योंकि यहाँ तो हमें हर नियम को पालन करना है। और जब डायरेक्ट उसके साथ संबंध है, भले हम यहाँ रहेंगे, चिंतन किसका करेंगे, यहाँ का। ये जो तारतम लेना है ये ब्रह्म सृष्टि के साथ है, और उसको विधिवत बैठ करके उन चौपाइयों से समझा करके जो है तारतम दिया जाएगा कि एक एक शब्द का अर्थ क्या है। और अब इसके बाद करना क्या है कि यहाँ के चिंतन क्रम व्रत, आज था मंगलवार से, आज अमावस है, आज आ करो ने, आज वो करो ना, नथिंग, कुछ भी नहीं। केवल उस राज्य महाराज के चरणों में अपने चित्त को सुनना और मनन करना। अब जिस समय हमारा संबंध इसके साथ हो जाएगा तो फिर श्री प्राणनाथ प्यारे की तुम होते जियो में तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीव तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो ये जी। सब विद्वाला जी समरथ दीन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती सो क्यों देखूनी के कर जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना बर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सुन के अब दिल करो तुम जीन जी। पल पल खबर जो लीजियो इतनी अर्ज करूं मैं दुल्हीन जी। इतनी अर्ज मैं तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराए जी। सो
अंतर आड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी, कंठ लगाए कंठ सोपिया कीजे हास विलास जी, वर्णि जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी, तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और न जानो बात जी, इश्क सो सेवा करूं पिया सब अंगों साक्षात जी, सदा सुखदाता दाम धनी में क्या कहूँ किंतु बात जी, श्रीमती पर प्यारी आंगनवाड़ी भली जाए जी महोदय सुशी की श्री आनंद मंगल श्री जय छत्र साज की जय, श्री सुंदर साज की जय। प्रणाम जी, 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 प्रणाम जी दक्षा बहन, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आयो